Welcome everyone. Today we are recording the next episode of our Supermorpheus podcast, Startups and Evolution. So just to give you an overview, Supermorpheus is a sort of a unique community around building of startups, which brings together people from various aspects of contributors who build startups, like founders, investors, senior employees, designers. But the kind of people we want to attract is a very special kind. People who wish to build startups not with the purpose of fulfilling their own ego. It's not for them. Building a startup is not about them becoming rich, them becoming powerful, successful, but it is about the collective growth of the whole team, the customers, the vendors, everybody else. So it's sort of a different drive they carry. And today I have one such person from our community, Deepak. Welcome, Deepak. Thank you, Sameer. Yeah. So Deepak, we met about a year ago, the first time, and then we got into a little bit more closer relationship in the last 6 months, Ji. where I have very closely observed that you have a very intense sort of orientation towards being very conscious, being very collaborative and caring towards your team and your customers. And you have a sense of thinking very deeply about it, right? So can you help us understand in your own life, where did this journey start for you, where you can trace it back, and how did it grow and develop from there? Right. First of all, Sameer, thank you. If I tell you very honestly, I don't know the exact point of start of this journey. I really don't. All I know is that when I was myself a civil services aspirant, so I had gone through various challenges in that journey. Okay. Books were never the challenge for me, like reading or getting notes or getting material. That was not the challenge for me. But overcoming my fears, overcoming my mental hurdles, overcoming my insecurities was a very big challenge for me. Because वो कहते हैं ना कि यार IAS तो एक अटेम्प्ट में बनता ही नहीं है. 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल लग जाते हैं. तो I had bought into that story कि यार नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है, ऐसे है. तो वो 6 साल लगाने के बाद जब मैं निकला बाहर, तो आई कुड नॉट इवन रिकग्नाइज माई सेल्फ, आई वुड से, कि बहुत डरा हुआ इंसान बन गया था मैं. और जितने चैलेंजेस से मैं गुजरा था, उससे मेरे अंदर एक एम्पैथी बहुत ज़्यादा आ गई थी कि यार अगर मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जो इस पर्टिकुलर चैलेंज से गुजर रहे होंगे, जिनके लिए कोचिंग को क्या फ्री में अवेलेबल है. कोचिंग, इफ आई कैन पुट इट वेरी ब्लंटली, फ्री में अवेलेबल है. इफ़ यू आर अ keen observer, you can look at YouTube, you can look at Google, and you would find a lot of material. You can even buy material from photocopy shops. Yeah. मिल जाता है बड़े आराम से. लेकिन वो जो एक क्या बोलूँ, एक हमदर्द वाला जो होता है रास्ता, या जो एक आपके साथ एक चलने वाला इंसान होता है जो आपकी हिम्मत बढ़ाता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था. तो when I started teaching, when I was out of the journey and I started teaching. So maybe help me just for the context, just step back a little bit. So before you started the UPSC preparation, what were you doing? What were you into? I was working with Maruti Suzuki as a territory service manager. Okay. So I was basically the link between the dealerships of Gujarat and the company based out of Gurgaon. And when did you finish your education? I finished it in 2010. And then you went into Maruti? Yeah. अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि I got 3 placement offers. One was with SR Oil, second was with Trident, and third was with Maruti. And I remember very distinctly that there was a certain sort of hesitance. बहुत hesitant था मैं to join a company उस टाइम पर भी, 2010 में. पर जब मैं लोगों से मिला और उनको मैंने बताया कि 3 ऑफर्स मिले हैं मुझे, तो उन्होंने कहा यार मारुति ज्वाइन कर लियो. मैंने पूछा क्यों? दे सेड कि यार सबसे बड़ी कंपनी तीनों में से यही है, तेरा मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, वहाँ पे तुझे अच्छी सब चीज़ें मिलेंगी. एंड आई अगेन बॉट इनटू दैट थ्योरी एंड आई वेंट टू मारुति. First of all, it was a huge change of, environment for me from Patiala to Gurgaon. I remember my first journey to Gurgaon, जब मैं कार में टैक्सी में जा रहा था, and I saw those buildings for the first time. That was new for me. मैंने उससे पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी थी जीवन में. पटियाला में नहीं ऐसी बिल्डिंग्स. गुड़गांव में देखा, अच्छा यार ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी होती हैं. आई वॉज लाइक यार मैं इंडिया में नहीं हूँ. मुझे ऐसी फीलिंग आई. तो जैसे मैंने वहाँ का कल्चर देखा, वेरी फास्ट फॉर मी.
मैंने एक लड़की को पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा था वहाँ पे गुड़गांव में, एंड इट वाज अ शॉक फॉर मी कि यार अच्छा ऐसे भी होता है। मैंने रात को जागा, पहली बार था मॉल, शायद बड़ा मॉल पहली बार गया था, डिस्क पहली बार देखा था, तो दैट समहाउ डिड नॉट सिट वेल विद मी। ओके आई वॉज नॉट हैप्पी विद द प्लेस एट ऑल, ओके एंड आई वॉज लुकिंग फॉर कि कैसे इससे बाहर निकला जाए गुड़गांव से। अच्छा एंड द गुड थिंग इन मारुति इज यू आर गिवन एन ऑप्शन आफ्टर योर ट्रेनिंग, you can choose your department, ओके while others were choosing R&D because they get a chance to visit Japan and everything. I was looking at a department which does not have a place in Gurgaon. कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका गुड़गांव में जगह नहीं है, हाँ तो वो निकला सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ओके यस इसमें आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती, हाँ तो मैं कहा ये करना है मुझे। कि कहाँ होती है? चंडीगढ़ होती है, अहमदाबाद होती है, आरओज में होती है, बेसिकली रीजन ऑफिस में होती है। मैं कहा ये चाहिए, ठीक है तो मैंने वो भरा फर्स्ट प्रेफरेंस। और वो बहुत लोग फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, R&D भरेंगे, प्रोडक्शन भरेंगे, सप्लाई चेन भरेंगे, वो नहीं भरेंगे। तो मैंने उसको नंबर 1 भरा कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो फिर मुझे मिला अहमदाबाद। तो गुड़गांव की जो वाइब है बेसिकली यू फेल्ट दैट कि डिडंट रियली सिट वेल विद यू। मुझे उस टाइम पे तो ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था, बस ये समझ में आ रहा था कि ये मुझे जच नहीं रहा। हम अंदर से कुछ लग रहा अंदर था से कि बस एक गंदी सी फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे ये नहीं जच रहा, so then मुझे you यहाँ went नहीं to रहना। अहमदाबाद। Then I went to Ahmedabad, जबकि I wanted चंडीगढ़, हाँ that was close to my hometown, but I was given Ahmedabad. ओके मैं बड़ा रिलक्टेंटली अहमदाबाद गया कि दूर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। पर जब मैं अहमदाबाद गया, आई लव्ड द प्लेस, रियली आई लव्ड द प्लेस। सच यू नो काम पता नहीं राइट वर्ड है या नहीं है, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, ऑपोजिट टू गुड़गांव एक्चुअली। Yeah. मुझे बड़ा अच्छा लगा। कलीग्स वर वेरी हेल्पफुल, द सिटी वॉज वेरी गुड, द फूड वॉज वेरी गुड, द इन्वायरमेंट वॉज वेरी गुड, द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। आई वॉज एट पीस देयर। ओके बस वहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ माई स्कूलिंग एंड अपब्रिंगिंग आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसके नंबर वगैरह अच्छे आते थे। ठीक है तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने ना मेरे मन में कई बार बात ये ऐसे कर दी थी, मेरे पेरेंट्स के साथ भी, मेरे साथ भी, कि तो IAS बनेगा। एंड ये पहले से ही चल रहा था, मतलब एज यूर चाइल्ड इन स्कूल तब से ये yeah. हाँ द थिंग वाज देयर। क्योंकि हमारे कॉलोनी में कुछ IAS ऑफिसर्स थे भी, मेरे पापा माँ उनसे मिलवाने भी ले जाया करते थे। ठीक है सो दैट इन्फ्लुएंस वाज देयर, दैट इन्फ्लुएंस वाज देयर, एंड सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल हैव टू अपीयर फॉर UPSC वाला कल्चर भी चल रहा था कि यार ओके ओके ये तो IAS बनेगा। तो मैं आई रिमेंबर वन फोन कॉल विद माई फादर, जब 1.5 साल मुझे मारुति में हुआ था। पापा कहते क्या चल रहा है? तो मैंने कहा पापा जॉब चल रही है। कहते क्या करना आगे? मैंने कहा ठीक चल रही है ये। कहते नहीं ये तो नहीं करना सिर्फ। तो आई रिमेंबर माई हार्ट सिंकिंग, मुझे अभी भी माई हार्ट सैंक काइंड ऑफ कि यार फिर क्या करना है। तो इस साइड यार कि ये तो नहीं करना कि क्या 40-50 हज़ार की नौकरी करेगा, ऐसी उनकी थी कुछ चीज़ें। तो देन आई सॉर्ट ऑफ यू नो कॉल्ड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आई आस्क्ड एडमिशंस कब से हो रही हैं। देन दे टोल्ड मी ऐसे ऐसे हो रही हैं, एंड देन आई काइंड ऑफ रिजाइंड एंड आई केम। कहाँ पर थी आपकी कोचिंग? विच सिटी यू केम टू? आई केम टू चंडीगढ़ फर्स्ट। चंडीगढ़ ओके। एक मेरा फ्रेंड था कॉलेज का, ही वाज पुट अप हियर इन चंडीगढ़ सेक्टर 51। ठीक है वो कोचिंग ले रहा था, तो आई टुक अ रूम विद हिम। एक फ्लैट था उसके पास, वहाँ पे रूम था, तो आई शिफ्टेड विद हिम। विच ईयर विच इज दिस नाउ? दिस इज 2011। तो 2011 से आप 6 years बेसिकली यू गेव इट टू द Yeah. UPSC प्रिपरेशन यस एंड चंडीगढ़ में थे और फिर कहीं और भी गए? यस, चंडीगढ़ में पहले तैयारी करी, देन आई वेंट टू दिल्ली ओके बिकॉज 2013 में द पैटर्न ऑफ UPSC चेंज्ड ठीक है एंड देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ फोमो एंड इनसिक्योरिटी की पैटर्न बदल गया है। अब पता नहीं क्या आ जाएगा, इसकी कोचिंग तो करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर दिल्ली गया, ओल्ड राजेंद्र नगर में गया, फिर वहाँ पर कोचिंग ली फिर से GS की, बिकॉज सारा कुछ चेंज हो गया था। अगेन दैट गुड़गांव फीलिंग केम बैक, क्योंकि दिल्ली ऑल्सो इज सम प्लेस विच डज नॉट सिट वेल विद मी। ओके तो वहाँ पर ही बहुत हसल बसल, एकदम कल्चर चेंज, एकदम सारी चीज़ें। पर हाँ, आई सॉर्ट ऑफ स्टेड इन अ वेरी स्मॉल रूम, जहाँ पर खाने की भी दिक्कत आ रही थी मुझे, हर चीज़ की दिक्कत आ रही थी बेसिकली, बट आई काइंड ऑफ स्टेड एंड आई फिनिश्ड माई कोचिंग। आई केम बैक टू चंडीगढ़। ओके 1-1.5 साल मैंने वहाँ भी लगाया। तो फिर ये जब ट्रांजिशन है UPSC टू स्टार्टिंग योर कंपनी हाँ विच हेल्प्स पीपल हु प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जी, कैन यू डिस्क्राइब कि ये कहाँ से शुरू हुआ सीड और कैसे मैनिफेस्ट हुआ, या और क्या आपका उसमें फंडामेंटल, बिकॉज आई नो दैट यू हैड अ वेरी फंडामेंटल डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ what lacked in the system and what could be provided, जी which was not just commercially driven. It had a lot to do with actually being a friend of the student, right? जी। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। मतलब जब मुझे तैयारी करते हुए 3-3.5 साल हो गए थे, आई हैड स्टार्टेड फीलिंग
a severe lack in self-confidence, a severe deprivation of self-esteem. I come from very, middle class family. तो जिनसे मुझे जब मैं घर से पैसे मांगता था, बिकॉज कोचिंग के पैसे भी चाहिए थे, खाने पीने के पैसे भी चाहिए थे, रेंट के पैसे भी चाहिए थे, तो मैं कुछ पैसे घर से हर महीने पापा से मांगा करता था. दैट फीलिंग यूज टू बी वेरी गंदी फॉर मी. वो जो फ़ोन कॉल जाता था मेरा पापा को, आप इतने पैसे डाल दो, तो आई फेल्ट दैट बर्डन कि यार वो जब डालेंगे तो हमारे पास इतने नहीं है डालने के लिए जितने वो डाल लेंगे. पर पापा ने मना कभी नहीं किया. पर मी बीइंग द सो कॉल्ड ब्राइट चाइल्ड एंड टेकिंग मनी इवन 4-5 years डाउन द लाइन, दैट डिड नॉट सिट वेल विद मी अगेन. ठीक है. तो मैंने कहा क्या किया जाए कि डिग्री तो पुरानी हो गई है, एक्सपीरियंस कोई खास है नहीं, 1-1.5 साल का क्या एक्सपीरियंस होता है. तो शायद मैंने जो पढ़ा है, तब तक मैंने 2 इंटरव्यूज़ दे दिए थे सिविल सर्विसेज के, कि जो मैंने पढ़ा है उसको शायद मैं पढ़ा सकता हूँ और मेरी तैयारी भी कंटिन्यू हो जाएगी, पढ़ भी लूँगा, पढ़ा भी लूँगा, गुजारा भी चल जाएगा. ठीक है. देन आई अप्लाइड. ओके. ये रिज्यूमे उठाया मैंने, अपना बनाया रिज्यूमे सिंगल पेज का, और मैंने इंस्टीट्यूट्स में डालना स्टार्ट कर दिया. ओके. दिल्ली में भी डाला, दिल पे पत्थर रखे, चंडीगढ़ में भी डाला. तो थैंकफुली चंडीगढ़ से अभिमन्यु IAS एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से बंसल सर का ईमेल आया, कम मीट मी ऑन थर्सडे 3 PM. बस ये आया लाइन. मैं चला गया खुश. मैं कहा चलो चले चंडीगढ़. उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि पढ़ा लेगा. तो मैंने कहा सर आई ट्राई. क्या पढ़ाएगा? तो मैं कहा सर पबैट पढ़ा सकता हूँ, पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ. उसका टीचर है मेरे पास, और क्या पढ़ा लेगा? इकोनॉमिक्स पढ़ा लेगा? मैं सर इकोनॉमिक्स तो नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं. कहते अच्छा 2-3 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे कि मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से सारे वो, मुझे कोई भी नहीं आता था. तो मैं कहा सर नहीं आता. कहते कितने पैसे लेगा? मैंने कहा सर बहुत, मैंने दुबकी हुई आवाज़ में बोला बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने कहा सर 30,000 अगर हो जाए तो. 30 तो बहुत ज़्यादा है. तो मैं कहा सर जैसे आप कहें. 15 में हो जाएगा? मैं कहा सर चंडीगढ़ में रहना सहना 15 में हो जाता है? सर कहते हैं हो जाता है. मैं सर चलेगा, 15 चलेगा. तो सर ने कहा ठीक है फिर कल से आ जाओ. तो मुझे 15,000 सैलरी पे मैंने वहाँ पर पहले पढ़ाया नहीं, सर ने मुझे नोट्स दिए अपडेट करने के लिए. अच्छा. मैंने वो नोट्स अपडेट किए बैठ के. ही लाइक द वर्क. फिर उन्होंने मुझे एक लॉ एंट्रेंस होता है क्लैट, उसका एक छोटा सा बैच था 25-30 बच्चों का, उसमें का GS पढ़ा, GS पढ़ाई. व्हाट इज GS? जनरल स्टडीज़. ओके. उसके बाद उन्होंने मुझे PCS, पंजाब PCS का इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए बैच दिया. ओके. इकोनॉमिक्स मुझे आती नहीं थी अच्छे से. मैंने दिन रात लगा के दबड़ पढ़ी वो बैठ के कि यार पढ़ानी है. तो मैंने पढ़ाया. तो जब मैंने वो पढ़ाया पहली क्लास में मैं गया, दैट शुड बी अ वाटरशेड मोमेंट. ओके. लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा. मतलब जाते हुए तो मैं काँप रहा था सच्ची में, दिख नहीं रहा होगा पर मैं अंदर से काँप रहा था. पर जब मैंने पढ़ाया तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली पढ़ा के. बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उनके आंसर दे रहा हूँ, मैं बहुत, और समहाउ मैं ना बहुत जल्दी एग्जांपल्स और एनालॉजीज ड्रॉ कर पाता हूँ. कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, आज भी मैं देखता हूँ कि मैं एग्जांपल एकदम मेरे दिमाग में ऐसे आता है और मैं उसको सोच के नहीं बोलता. एग्जांपल एनालॉजीज अपने आप आती रहती हैं. तो मैं कभी कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ चल रही है क्लास के अंदर, मस्त समझ में भी आ रहा है, इन्जॉय भी हो रहा है. फिर एक और PCS का बैच दिया, इकोनॉमिक्स का ही, वो भी पढ़ाया. फिर IAS का बैच मिला. ओके. उसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ वॉज 100-150 बच्चा, पर बच्चे उसमें आने लगे 300, 350, 250. ऑनलाइन पिछले बैचेस के भी नहीं, ऑफलाइन पिछले बैचेस की भी आने लगे कि दीपक सर से पढ़ना है, दीपक सर से पढ़ना है. पिछले बैचेस की भी, वो एक साल पुराने बच्चे आ रहे हैं. इट्स स्प्रेड लाइक ऐसे बात हुई कि उनसे ही पढ़ना है. हॉल में हो रहा था 300 बच्चे तो बड़ा सारा क्लासरूम था. क्लासरूम के बाहर बच्चे बैठे हैं, कुर्सियाँ खींच के दूसरे क्लासरूम से लेकर आ रहे हैं. तो द वे it was received and the feeling that I was experiencing while teaching, that was priceless for me. कई बार 8 घंटे क्लासेस होती थी, कई बार 9 घंटे, कभी 3 घंटे की, 3 घंटे की 3 क्लासेस. बहुत ही मज़े आते थे मुझे उस क्लास में. जाते हुए फिर भी कांपता था, मुझे अंदर से धक धक होती थी, पर एक बार स्टार्ट होते थे वहाँ पे तो बहुत मज़ा आने लग गया. एंड अगेन मेरे मन में ये डाला गया उस टाइम पे, कई मेरे कलीग्स ने कहा कहाँ तो चक्करों में पड़ा हुआ है, क्या कर लेगा पढ़ा के, अपनी तैयारी कर. जबकि मुझे वहाँ पे शांति मिल रही थी. पर नहीं, तू क्या ही कर लेगा, क्या ही दे देंगे तेरे को, ये कितने पैसे कमा लेगा, तू एक काम कर, तू अपनी तैयारी कर, इनको कुछ नहीं होता बच्चों का, चलने दे. मतलब मुझे नहीं, लेकिन ये समझ में आता था कि यही चीज़ तो मेरे साथ हुई थी पहले, कि अगर मेरे टीचर ने सोचा होता कि मैं दीपक को पढ़ा के क्या ही हो जाएगा,
है ना, और वो अपनी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता और मैं एज अ स्टूडेंट पे ध्यान ना दे रहा होता, तो यार दैट वुड नॉट हैव बीन राइट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर कि वाई शुड आई रिपीट दैट. तो मैं उनकी बात सुनता तो गया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता भी गया कि तू गलत कर रहा है, नहीं तुझे अपनी तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तुझे अपने अटेम्प्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. पर यार मुझे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव कहो, अटैचमेंट कहो, एम्पथी कहो, बहुत ज़्यादा थी. तो कैन वी से दैट बेसिकली आपको एक बच्चों के प्रति एक लव या प्रेम बहुत ही कुछ ज़्यादा, फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा. फेल्ट नेचुरल, या यू नो. क्लास के बाद बच्चे आते थे, हाँ. बैठे रहते थे घंटा घंटा 2-2 घंटे. मैं कभी नहीं कहा कि मुझे जाना है. सुबह 7 बजे भी क्लास होती थी, मैं 6:45 बजे क्लास के अंदर होता था. बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो 7 बजे क्लास है, 7:30 बजे आ रहे हैं. आई यूज टू बी 15, 20, 30 मिनट्स अर्लियर, रीच अर्ली देन द क्लास टाइम. तो फिर यहाँ से फिर एडुटैप का आप जो आपने खुद का जो जी. अपना वेंचर लॉन्च किया, हाउ वाज द स्विच? आई यूज टू कीप राइटिंग आइडियाज जो मेरे दिमाग में आते थे कि अपना क्या हो सकता है. वन ऑफ द आइडियाज दैट केम टू माई माइंड वॉज कि यार दिल्ली में नोट्स मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो कहीं नहीं मिलते, ना चंडीगढ़ मिलते थे उस टाइम पे, कि यार कोई ऐसी ऑनलाइन चीज़ क्यों ना खोली जाए कि इंडिया में बैठा कोई भी बच्चा दिल्ली के कोचिंग के नोट्स जो वहाँ पे बुक सेलर की शॉप से मिलते हैं वो मिले. बच्चों को हम कोरियर कर देंगे. मैंने वो लिख लिया पर्ची पे, ठीक है, लिख लिया, छोड़ दिया. एक और आइडिया दिमाग में आया कि यार जब मैं गुड़गांव रहता था, अहमदाबाद रहता था, तो ऐसी चीज़ें होती थी कि प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो हमें लोकल वाले को बुलाना है, पर हम सुबह से शाम तक तो ऑफिस में हैं, कब करें. मैंने वो भी लिख लिया कि यार कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि ऑनलाइन जाके कर लें, बुकिंग हो जाए, वो सुबह 7 बजे आ जाए, शाम को 7 बजे आ जाए. तीसरा आइडिया आया कि यार ये आइडिया तो नहीं कहूँगा, एक मेरे जो ब्रदर इन लॉ है अंचित सर, उनका कॉल आया कि मेरा एक फ्रेंड है गौरव, वो किसी बंदे को ढूंढ रहा है जिसको इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, तू पढ़ाएगा क्या? मैं किसके लिए पढ़ानी, कहते मुझे नहीं पता, मिल ले. तो मैंने कहा मिल लेते हैं. गौरव मित्तल बाय द वे, जिसको आप भी जानते हो. हाँ. तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उनकी ट्रेन थी दिल्ली की, मैं वहाँ मिला. उन्होंने कहा यार एक पेपर है आरबीआई में, कहा मुझे पता, मैंने दिया भी है. कहते उसमें ना इकोनॉमिक्स में, कहा मुझे पता है. कहते नोट्स बनाने बना लेगा? मैं कहा हाँ जी करता हूँ मैं, ये चीज़ बना लूँगा. कहते चल ठीक है बनाते हैं. तो उनकी एक कंपनी थी प्रेपर, PREPER.in. कहते ये कंपनी है, मैं अकेला हूँ उसमें, करते हैं. तो मैं कहा ठीक है करते हैं. चलो जी करने लगे तो आरबीआई कोर्स बना दिया हमने, गौरव ने और मैंने. बिकने लगा, चलने लगा. मैं भी उसी शिद्दत से वो बना रहा था जो मुझे प्यार बच्चों के साथ है, वैसे ही वो नोट्स बना रहा था, बहुत ही प्यार से, टिकाव से. गौरव का शायद कुछ माइंड चेंज हुआ, वो कुछ और करना था, डिड नॉट वांट टू डू दिस, डू समथिंग एल्स. मुझे इसको अब छोड़ना नहीं था. देन आई टॉक टू अंचित सर, यार ये चीज़ करनी है, हमने करें क्या? ही सेड ही वाज वर्किंग विद इन्फोसिस एट दैट टाइम. उन्होंने कहा तू यार पागल है कि मेरी अच्छी खासी नौकरी है, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, ये पता नहीं हवा में क्या आइडिया ले आया हुआ है, क्या ही चलेगा. तो मैंने कहा नहीं करके देखो. तो ही टुक अ सैबैटिकल फ्रॉम इन्फोसिस फॉर 1 ईयर. तो हमने स्टार्ट कर दिया. तो अब तक आप अभिमन्यु से छोड़ चुके थे कि अभी आपने? अभिमन्यु से मैं, एक और इंस्टीट्यूट है राज सर का, राज मल्होत्रा IAS, मैं वहाँ पर चला गया था. हाँ आई नो राज वेरी वेल. यस, तो मैं वहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गया था. हाँ, तो आपने मतलब जो ये पहला कोर्स बनाया ये पैरेलल टू राज, उसके बाद आप दोनों ने मतलब सबैटिकल लिया या आपने छोड़ा, देन यू स्टार्टेड? जी. जो पहला कोर्स बना वो अभिमन्यु के पैरेलल था. जब कंपनी स्टार्ट की तो वो राज मल्होत्रा के पैरेलल थी. मैंने सर को बोल भी दिया था कि सर हम अपना कुछ कर रहे हैं, कहते तू करता रह साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने वो किया. लेकिन जब धीरे धीरे काम बढ़ा, फिर मैंने सर को कहा सर मैं और कर नहीं पाऊंगा, कि मुझे यहाँ फुल टाइम फोकस करना है. ठीक है. सर कहते ओके गुड करो. हाँ, बट आपके पास एक, जितनी बार भी आपने मुझे डिस्क्राइब किया, आपके पास एक अलग क्लैरिटी थी कि जो दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन की कोई कमी नहीं थी जी, बट जिस तरह का वो एनवायरनमेंट या सपोर्ट दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, या जिस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, आपके मन में कुछ अलग था कि एक अलग स्पेस बनाया जाए जो अलग तरह से सोचे, अलग तरह से काम करे. तो वो क्या कुछ था उस समय, क्या क्लैरिटी थी आपके पास उस टाइम पे? बस एक फीलिंग थी, क्लैरिटी तो नहीं मुझे पता. फीलिंग थी कि यार एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मेरे साथ प्रोमिसेस बहुत हुए हैं लेकिन फुलफिल बहुत कम हुए हैं. एज अ स्टूडेंट मेरे को मटेरियल पक्का मिला है लेकिन मेंटरशिप कम मिली है. एज अ स्टूडेंट मुझे टेस्ट सीरीज मिली है लेकिन मुझे हिम्मत नहीं मिली है. एज अ स्टूडेंट मुझे नोट्स मिले हैं, मुझे क्लासेस मिली हैं, लेकिन जब जब मैं गिरा हूँ मुझे वो हाथ नहीं मिला उठाने वाला. और इतने सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पर, और एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं
दुनिया तो यही पूछती है, रिश्तेदार यही पूछते हैं कि हाँ जी हो गया, अच्छा क्या कर रहा है आजकल। ये भी कहने का मन नहीं करता अंदर से कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, नहीं करता सच्ची मन। सोशल एंगेजमेंट्स में जाने का मन नहीं करता, इसी क्वेश्चन के डर की वजह से पूछेंगे हाँ जी क्या कर रहा है बेटा आपका, हाँ दीपक क्या कर रहे हो, अच्छा आपको तो बड़े अच्छे थे, अच्छा मारुति छोड़ दी है, अब क्या कर रहे हो। मैं तैयारी कर रहा हूँ आंटी। तैयारी तो आप लास्ट ईयर भी कर रहे थे, अभी वही कर रहा हूँ। तो वो इतना कुछ फील होता था, उसको किससे शेयर करूँ जाके मैं। तो मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो फैक्ट्री की तरह चल तो रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, मतलब सामान भी दे रहे हैं मैकेनिकली, और आप उनको पैसा भी दे रहे हो, बट दैट डजंट, इट्स नॉट अ इंटीग्रल फुल सोल्यूशन विच अ स्टूडेंट वुड आइडली नीड. दैट वाज द गैप विच बेसिकली यू फेल्ट. कोई एक आधा टीचर अपने दम पे तो चीज़ करता है, हाँ, जिसके अंदर वो मेंटरशिप वाली क्वालिटीज होती हैं, जो अपना सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है आके, वो जीवन सिखा जाता है आके। हाँ, मतलब वो अपने प्रेम, एक्सपीरियंसेस, हाँ वो जैसे इतने आपने प्रेम भाव से आके पढ़ाता है, इतने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है आके कि पढ़ा भी रहा है। ये नहीं कि आके उसने बस ये बकर करी और चला गया, नो नो नो, पढ़ा भी रहा है। पढ़ाने के अंदर ही वो बुन जाता है इन चीज़ों को, तो ये आपको मन करता है उसकी क्लास वापस आने के लिए, और आपको उसकी बात को सुन के वही इंप्लीमेंट करने का मन भी करता है, राइट। लेकिन बहुत सारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसी है जो पढ़ाई करेगी ठाबार, कि बस फॉर द सेक ऑफ इट। तो वो वाली फीलिंग नहीं अच्छी लगती थी। ठीक है, हमेशा ये लगता था कि यार बच्चा इज नॉट मेड अप ऑफ जस्ट फ्लैश एंड बोन्स, देयर आर सो मेनी इमोशंस गोइंग ऑन इनसाइड दैट पर्सन, there are so many fears and insecurities and challenges and problems and so many things that are going on inside that person. Why is no one looking at that? Why is no one addressing that? Yes. Why is no one empathetic to that? वो बच्चा हिम्मत दिखा रहा है लेकिन अंदर से शायद टूटा हुआ है। वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहा कि पापा मेरी बस हो गई है, कि मम्मा मुझे रोने का मन कर रहा है आज, कि दीदी मेरे से नहीं तैयारी हो पा रही, या दीदी नहीं बोल पा रही अपने भाई को कि मेरी शादी मत करवाओ यार, अभी मुझे 2 साल और दे दो प्लीज, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। वो नहीं बोल पा रही है। तो ये चीज़ों की कहाँ सुनवाई हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत हिट किया करती हैं और करती रहेंगी शायद। आज भी अगर किसी बच्चे के साथ फ़ोन कॉल होती है 15 मिनट की, वो कभी कभी 1.5 घंटा चल रही होती है, बिकॉज मैं घुसा पड़ा होता हूँ उसकी लाइफ के अंदर। वो पूछता है मेरे से एक चीज़, मैं पूछ के उससे पूरी कहानी खोल लेता हूँ, और मुझे उसमें मज़ा ही बहुत आता है, बिकॉज आई कैन रिलेट बैक कि यार यही चीज़ तो मेरे साथ हो रही थी, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। आई वॉज सफरिंग अलोन, व्हाई शुड यू सफर अलोन? कि लेट्स नॉट सफर अलोन, लेट्स बी विद ईच अदर इन दिस टाइम। तो जब आपने अपनी कंपनी शुरू की इन सब प्रिंसिपल्स पे, कि हम बच्चे की जब गिरेगा तो उसका हाथ पकड़ेंगे या उसकी बातें सुनेंगे, समझाएंगे, तो क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि जिनके साथ आप काम करते हैं, जैसे लोग प्रोडक्ट बना के मार्केट करते हैं जी, वो नॉर्मल मार्केट तो एक अलग ही तरीके से कर रही है। तो कैसे आपने उसको अप्रोच किया, कैसे चैलेंज आए, या शुरू से ही इट जस्ट क्लिक्ड विद द मार्केट बिकॉज यू वर एबल टू सी समथिंग व्हिच नोबडी एल्स वाज एबल टू सी? डिड इट टच अ नर्व? हाउ वाज दैट अर्ली स्टेज ऑफ EduTap? अर्ली स्टेज में, बिकॉज मी एंड अंचित सर वर द होल एंड सोल ओनर्स एंड एवरीथिंग, एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग, तो वी वर एबल टू, अंचित मेरे को-फाउंडर है, वी वर एबल टू मेंटेन दैट वैल्यू। ठीक है। I was the one who was answering all the emails. ठीक है। I was the one who was answering all the calls. I was the one who was guiding the student. I was the one who was making notes, and Anchit sir also making notes and lectures. हम 2 ही थे। तो बहुत प्योर वर्ड यूज करूँ, बहुत क्या यूज करूँ, क्लीन वर्ड यूज करूँ, सिस्टम चल रहा था। पर धीरे धीरे अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीन एबल टू रिमेन, जब से आपने शुरू किया, सॉरी टू जस्ट टू गो बैक, आपका डिजिटल शुरू से डिजिटल रहा है। तो डिजिटल जब था तो विच मीन्स जो आपकी वेबसाइट होगी जहाँ पर लोग पहली बार आते होंगे, वहां पर ये सब चीजें आपने अपफ्रंट लिखी? नहीं, कि वेबसाइट तो बनानी भी नहीं आती थी उस टाइम पे, बनवानी भी नहीं आती थी। वेबसाइट ही नहीं थी। अच्छा, इनफैक्ट जो LMS था हमारा, उसी पे एक बस पेज था। अच्छा, तो ये चीजें लिखी नहीं कहीं पर भी। पर उस टाइम पे क्या था कि बच्चे मेल किया करते थे और फोन कॉल्स दिन की 40, 50, 60 आती थी। तो ये वो बच्चे थे जो आपको पहले से जानते थे पढ़ाने के बाद की, या कैसे आप? There was not much supply for this examination in the market, I would say. तो कौन से एग्जामिनेशन आपने चूज किया था? RBI ग्रेड बी, RBI मैनेजर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जिसको भी इसकी तैयारी करनी थी, वो somehow he or she landed with us. अच्छा, वो बेसिकली वो ऐसा एक एग्जाम था जिसके कोई और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड। तो जो भी लोग थे वो आपके पास आते थे और आप उन्हें अपनी जो यूनिक अप्रोच है जी, उसके थ्रू बेसिकली उनसे यूनिक अप्रोच को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, द वे, और मुझे पता भी नहीं था कि ये यूनिक अप्रोच है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, बट जो थी, बट जैसे मैं उनसे बात करता था, उनका फोन आता था, मैं उनसे आधा घंटा बात कर रहा हूँ,
तो मतलब वो जो कॉल थी, वी कैन से वो सेल्स कॉल नहीं थी, नो नो नॉट एट ऑल, It was a सेल्स sort का of वर्ड a- भी नहीं पता था. यू नो सॉर्ट ऑफ अ प्रेम कॉल, लव कॉल फॉर द स्टूडेंट हाँ, बेसिकली. nice word. अगर आप देख पाए कि यू नो फॉर अ टीचर देयर इज अ लव, जैसे मदर हैज अ Yes. लव फॉर द Yes. चाइल्ड, जी. आइडियल टीचर वुड हैव लव फॉर द स्टूडेंट. जी. सो इट वाज एन एक्सप्रेशन एंड enactment of that, Yeah. even though you did not know it. Yeah, I did not know it. हाँ. I did not even know I was doing something different. ठीक है. I did not know that fact हाँ, at all. ठीक है. तो मैं उनसे बस बात करता था, कोई एजेंडा नहीं बात का, बस जो पूछ रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, और प्लस में उनके चीजें और भी पूछ रहा हूँ. कई बार मैं मना भी करता था, मत दो एग्जाम, कि यार आप ये ट्राई करो, शायद ये बेटर रहेगा आपके लिए. टेल मी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मुझे कॉल करके बताना. ठीक है. ठीक है. रात को 11 बजे ईमेल आती थी, आई यूज्ड टू इमीडिएटली आंसर. फोन पे मैं ठाटा ठाटा करके आंसर. तो दैट मिशन वाज वेरी प्योर, आई वुड से, इन द बिगिनिंग. And there was enough response because उसमें से फिर जो लोग थे, जी. some of them signed up for your Yeah. courses, and Yes, the yes. whole business aspect, which is the Yes, revenue and yes. delivery of your services Yes. began to start. So Yeah. that cycle began Yes. at that time. For me, that interaction with the student was an end in itself. For me, हाँ. it was not कि हाई मुझे पैसे देगा अब. हाँ. For me, it was बच्चे से बात हो गई, हाँ. बच्चे क्वेरी आंसर कर दी, मुझे उसी में ही ब्लिस मिल गया हुआ है. ठीक है. सो बेसिकली आपने प्यार से उनसे बात करी, क्वेरी आंसर करी, जिन्होंने साइन अप किया उनको प्यार से पढ़ाया, जब आप और अंचित दोनों ही थे, राइट? उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ, तो जब टीम बिल्ड करनी थी इन सब कामों के लिए, तो क्या आपको उसमें कोई डिफिकल्टी आई कि ऐसे लोग कैसे ढूंढें जो इसी तरह से काम कर पाएं जिस तरह से आप करते हैं? बहुत डिफिकल्टी आई इसमें, तो अभी भी आती है, बहुत ज़्यादा आती है इनफैक्ट. हाँ. देखो, मैं हमेशा ना एक तो था मेरा अपना वो चीज़ कि मुझे ऐसे करना है चीज़ों को, हाँ. मुझे ऐसे शांति मिलती है. एक तरफ थे बहुत सारे अपोजिंग फोर्सेस कि ऐसा धंधा नहीं चलता मेरे भाई, हाँ. ऐसा नहीं होता बिजनेस. तो आई वॉज ऑलवेज टॉर्न बिटवीन दिस टू वर्ल्ड्स, लिटरली टॉर्न, आई वुड से लिटरली टॉर्न, कि मैं ये सुनूं कि ये सुन शांति तो यहाँ मिलती है मुझे, पर यार ऐसे अच्छा ऐसे होता नहीं काम, ऐसे होता है, ऐसे करना पड़ेगा. थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे ये दो अप्रोचेस, अगर आपकी क्या ये वाली क्या है और ये वाली क्या है बेसिकली? ये वाली अप्रोच ये है कि जिसके अंदर फॉर मी, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, 2 + 2 इज इक्वल टू 4. हाँ. 4 is let's say money, and 2 + 2 is the process or the how part of it. हाँ. तो my focus 100% would be on 2 + 2, ठीक not on is equal to or 4. For me 2 + 2 will automatically become 4. कि अगर 2 + 2 का मतलब क्या है? If you have compassion for the student, if you understand the problem, if you are true to your calling कि बच्चे का ये हेल्प करनी है, if you are delivering on time, if you are delivering with that love वाला भाव, if you are truly understanding बच्चे की इमोशंस, तो 4 अपने आप हो जाएगा. तो गोल इज नॉट मनी, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ठीक है. ऑफ समथिंग दैट इज द गोल. सो प्राइमरी जो था आपके लिए प्रोसेस था, प्राइमरी दैट वो फीलिंग थी, प्राइमरी वो क्या बोलो, वो मिशन था कि यार अब कोई बच्चा जो मेरे साथ बात करे, एडुटैप के साथ बात करे, वो बच्चा बिल्कुल ऐसा फील करे कि यार मैं सेफ जगह पर आ गया हूँ आज, कि ये मेरा बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, कि मैं बिल्कुल सेफ जगह पे आ गया हूँ. और ये मैंने क्वेश्चंस बहुत लोगों से पूछा कि वेयर डू यू फील सेफ. मुझे एक ही आंसर मिला, फैमिली, होम. हाँ. कि होम इज़ वेयर आई फील सेफ. ठीक है. मुझे वो वाली फीलिंग चाहिए कि कोई बच्चा मेरे साथ बात करे, एडुटैप के साथ बात करे, एडुटैप के साथ इंटरेक्ट करे, ही शुड और ही और शी शुड फील सेफ. ब्यूटीफुल. कि ये मेरा बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे. यार ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. अच्छा ये भी होता है क्या? ये साला झूठ बोल रहा होगा, ऐसे नहीं होता, सिर्फ दिखावा कर रहा है. और जब बाद में आजमाए तो क्या यार नहीं, यार दिखावा नहीं कर रहा था, सच्ची में ऐसी था यार ये तो. ठीक है. दैट इज व्हाट गिव्स मी ट्रू हैप्पीनेस. तो ये आपका एक तरीका हो गया जी. व्हाट वाज द अदर मेथड विद द वर्ल्ड वाज पुलिंग यू टुवर्ड, वेयर दे वर टेयरिंग यू अपार्ट कि ये धंधा नहीं होता? फिर वो क्या बता रहे थे आप? कुछ हाइलाइट्स कि यार हर चीज पैसे के लिए होती है. ठीक है. कि अल्टीमेटली पैसा ही सब कुछ है. ठीक है. कि सब कुछ पैसे के लिए होता है, ये सब बकवास है. कि कोई तेरा सगा नहीं है, बच्चा भी तेरे को बच्चा भी अपना एक नीड पूरी करने आया है, उसकी नीड जहाँ बेस्ट पूरी होगी वो बस लेके जाएगा, कोई तेरे को बाद में याद नहीं करेगा. कुछ नहीं होता है ऐसा. इट्स अ थैंकलेस वर्ल्ड ओवरऑल. ऐसा कुछ नहीं होता. ये देखो कि हाँ यार क्या बिकेगा, क्या माल बिकेगा, वो माल बनाना है, बेचना है, दैट्स इट एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. दिस इज वेरी शैलो फॉर मी. तो कैसे आप फिर इस स्ट्रगल से कैसे आपने मतलब, बिकॉज यू हैव कंटिन्यूड इन द जो जिसको हम वी कैन से दैट अप्रोच ऑफ लव फॉर द स्टूडेंट्स. स्टिल स्ट्रगलिंग. हाँ. Still struggling. Okay. Still struggling because these two forces are very strong. Both of them are strong. One is my force, हाँ. जो मेरे को पता है strong है, मैं खुद उसको रोज जीता हूँ तो strong है. Opposing force is equally strong. तो I have had n number of sessions with my team
जहाँ पर मैं उनको यही चीज़ बताता हूँ कि यार हमने कुछ बेचना ही नहीं है, बच्चे की नीड समझो, सॉल्व करो, बाय। ना कंटेंट में बेचना है, ना कॉल पे बेचना है, ना ईमेल में बेचना है, बट समहाउ आई एम अगेन आई वुड से स्ट्रगलिंग। मैं नहीं कहूँगा ये सॉर्ट हो गई, चीज़ नहीं हुई है। अब ये स्ट्रगल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही है बेसिकली? ये स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी अब कितना टाइम हो गया? 6-7 years, राइट? ऑलमोस्ट 7+ years। 8 years हो गए हैं। Almost, एंड क्या आपका साइज है? इफ यू टू वेयर डू यू स्टैंड, हाउ डू यू ऑलमोस्ट 70 people now। 70 people? Yeah. And multiple courses or still that RBA? नहीं, multiple courses, we have almost like 12-15 different examinations that And we how many cater to। students currently you are at one time और lifetime में कितने students के साथ आप? I'm not good with numbers, पर मुझे मोटा मोटा जो आइडिया है वो आई थिंक 30 to 40,000 स्टूडेंट्स अ ईयर एनरोल विद अस। ठीक है। तो ये नंबर शायद 20 साल पहले रहा होगा। तो मोटा मोटा 3-4 लाख बच्चे हो गए होंगे अभी तक जो पढ़ाए होंगे। The company has been built fundamentally on the approach of love for the student, love, care, safety. You know, we can use many words for that. And with that approach, with process of delivery being the focus, not the outcome, you have in your journey so far, आपकी जो organization है, 3 to 4 lakh students have been enrolled in your courses. Maybe as many more have been touched by conversation with you or interaction with your content and all. So basically, this is a significant thing to think about, and it does, at least to me, proves very clearly beyond a doubt that even if you take an approach of love and quality and care and respect towards your customers and your team, it does not mean that you will be like, as a business metric, you will be lost, right? So in a way, both these things are happening at the same time, right? So that's a very remarkable achievement, I would say. So congratulations to you and the team for that. And so my question now, let me just switch over, because as you know, Supermorpheus, see, I've had a similar journey actually, in a way, because I built a startup of my own, me and Nandini, 2.5 years, and we also had this experience of being torn because we had a sort of an approach where we seem to care a lot about our customers, our promise to our customers, and our team and whatever we did, right? But at some point, we were also told to raise money, make money, we went, tried that. So, but anyway, eventually, we couldn't sustain that path of greed and money, so our company got acquired. और उसके बाद 2.5 साल हमने खुद की कंपनी बनाने की कोशिश की. सो इट्स लाइक वी वर स्टार्टअप एस्पिरेंट, यू वर यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट? एंड देन मतलब जिस कंपनी हमें खरीदा तो 6 महीने में उनके साथ काम किया. देन वी एंडेड अप स्टार्टिंग अ sort of institute for entrepreneurs, right? Startup accelerator, where we were working with founders, or every time we were trying to help ourselves कि जो हमारे को नहीं मिला तो वही हम let's try to guide people in the right way. So where we have come and where we came to the point, and see, Morpheus, our first venture, became pretty successful, but what happened was that startup ecosystem, in our experience, became primarily focused on fundraising. मतलब स्टार्टअप का एक काम है फंड रेज करना. इट्स द कूल थिंग टू डू, हाँ, मतलब अगर आप देखें तो फंड रेजिंग, कैपिटल अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट काम है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी टीम हायर करना, एक कल्चर अच्छा बनाना, कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाना, उनको सोल्यूशन देना, फाउंडर्स को खुद के अपना ख्याल रखना, राइट? सो व्हाट वी सॉ वाज कि ये प्राइमरी चीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई कि सब कुछ इग्नोर हो गया बेसिकली, right? So we saw the startup ecosystem change in nature to become very aggressive towards fundraising, and that was only metrics. So that we could not relate to. So we left the ecosystem in 14, and because we just could not tolerate, what was happening. But in between, we went through our own journey of personal self-discovery, and so basically, so in a way, we exited the world to live a little bit more recluse life, in which we were only sort of focusing on inner journey and inner self-discovery growth a lot, which happened for 6 years. And then somewhere this idea came, this whole growth inwardly, where your value system changes, right? Where you feel connected and respectful to a lot of people. Can this be brought back to the startup world, right? So the Supermorpheus का जो वो
that's the thesis, right? To merge these two dimensions, right? And the reason I was interested in your journey is because that's exactly, the kind of journey you guys have been, right? But 6 months before when we met, right, we basically also, I shared with you that how, apart from our large community, we have a very specialized group within Supermorpheus where we work with individuals to be able to consciously take up a journey of self-discovery, right? And you have been, very interested from the point go, which means that thread was there within you. And it's been 6 months. So maybe, if you can share something about that, how that has helped you and, where has it brought you in context with your life and business both ways. Yeah. So that journey started with self-observation. You gave me an assignment. Yeah. कि आप कोई भी अपनी एक एक्टिविटी उठाओ दिन की. बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मत उठाना. कोई सिंपल सी एक्टिविटी उठाना, लाइक टेकिंग अ बाथ, ड्राइविंग अ कार, हैविंग फूड, एंड यू जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ वेरी कीनली. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी, पर इस कीननेस से नहीं होती थी. तो वो जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व वाज कि आई एम एक्टिंग लाइक अ रोबोट. कि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बड़ी प्रोग्राम सी चल रही हैं. मतलब कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है बस. ऐसा होगा ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा ऐसा कर दूंगा. मतलब नहाने जा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा, अभी अपने आप ही हाथ चल रहा है, अपने आप ही टैप ऑन हो रही है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है. सब कुछ मतलब ऐसा है कि रोबोट की तरह चल रहा है. ड्राइव कर रहा हूँ तो अपने आप ही गियर डल रहे हैं, अपने आप ही रेस चल रही है, अपने आप ही हॉर्न बज रहा है, चल रहा है अपने आप. तो जब वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करता रहा तो बहुत सारी चीज़ें ये भी ऑब्जर्व हुई कि यार मुझे अच्छा इस टाइम बुरा लग रहा है, मुझे इस टाइम अच्छा लग रहा है, इस टाइम मेरे अंदर ये इमोशन उठ रही है, यार ये क्यों उठ रही है मेरे अंदर इमोशन, यार ऐसा क्या हो गया था. मतलब धीरे धीरे अपने आप से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार ये हो क्या रहा है, कि वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस. अच्छा ये फीलिंग उठ रही है, अच्छा फिर चली गई. यार ये थॉट आ रहा है, फिर मैं कैरी अवे हो रहा हूँ थॉट के साथ. अच्छा ये इमोशन आ रही है, फिर मैं कैरी अवे हो रहा हूँ इस इमोशन के साथ. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऑब्जर्वेशन करते वंस यू सी योर पैटर्न या वंस यू सी योर सेल्फ इन दैट ऑब्जर्वेशन, यू आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. अगर ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो क्या ही लोगे उसके बारे में. बिल्कुल. यू गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एक बार पहले हमारी बात हो रही थी कि दीपक आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके पीछे चींटियां जा रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट. चल रहा है तो चींटियां चलती रहेंगी. इफ़ यू सी अच्छा हो जा रही हैं, देन यू कैन परहैप्स डू समथिंग अबाउट इट, कि ठीक है हटा लेते हैं या किसके बारे में कुछ कर लेते हैं. तो वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ बेटर, एंड द थिंग्स दैट यू फील कि आर नॉट हेल्पिंग यू और नॉट एडिंग यू एट ऑल, उनको यू कैन स्टार्ट टू थोड़ा डिजॉल्व. कि यार इस बार ना ये थोड़ा रूट लेके देखते हैं, ये नहीं लेते जो मेरा डिफॉल्ट रूट है, डिफरेंट रूट लेके देखते हैं. वो डिफरेंट रूट फिर जब लोगे तो उससे थोड़ी वैलिडेशन भी मिलेगी. ठीक है यार ये सही रहा रूट, बढ़िया था यार, क्या ही कर रहा था पहले मैं, यार ये बढ़िया है. तो द इम्पैक्ट दैट इज दिस ओवरऑल एक्सरसाइज हैज इज कि यू आर एबल टू लिव, come out of that constant state of restlessness. I would say for me that is the thing, कि constant state of anxiety, constant state of rush, constant state of restlessness, constant state of activity. दब बोले ऐसे. तो you are able to आराम से let life happen and not react to everything in life. कि ठीक है let things flow थोड़ा. You participate in the things, but you participate fully and you participate with a lot of consciousness उस चीज़ के अंदर. तो I don't know if that made sense to the viewers, but this is what has been for me. तो जैसे अगर आपकी when you moved from a, let's say, a robotic life or life of anxiousness towards more simpler, calmer, more conscious life, तो that was a personal change, right, for you. So in the context of your business, what are some of the major things you saw? Because if you are changing, your approach to business is changing, right? So any of the things which you would like to sort of share, which have happened or which are maybe developing in within you to happen? One thing that comes to mind is my hiring process. Okay. With respect to the hiring process that we used to take earlier, अगेन मैं टॉन था दो प्रोसेस के बीच में कि मैं तो पर्सन को जानना चाहता हूँ. हायरिंग से पहले पर्सन को जानना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू लुक एट द स्किल्स एंड एवरीथिंग. आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सन बिहाइंड दैट वेल, कि आप हो कौन. यू आस्क मी, आई आस्क यू, वी मीट म्यूचुअली. आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछो. आई डोंट वांट टू डू एन इंटरव्यू. आई वांट टू जस्ट सिट विद यू एंड टॉक. आई वांट टू अंडरस्टैंड यू. आप कौन हो,
मुझे बताओ प्लीज आप कौन हो, है ना, आप मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ, आई विल टेल यू एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल. Yeah. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू. पर व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, ये रही जेडी, ये रहा टाइम लिमिट, कर दो क्लोज पोजीशन को, टेस्ट लो, ओके 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 ओके, ठा ठा ठा, रिजेक्ट कर दो, क्लोज कर दो, ये चल रहा था. नाउ आई हैव स्टार्टेड हायरिंग मोर कॉन्शियसली इन द मैनर कि आराम से उनसे बात करूंगा, आराम से उनसे 2-4 बार 5 बार मिलूंगा, चाहे कोई भी पोजीशन हो. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सीनियर पोजीशंस, बहुत जूनियर पोजीशंस, मुझे मिलना है उससे, जानना है उसके बारे में. इनफॉर्मल सेटिंग में भी मिलना है, फॉर्मल सेटिंग में भी मिलना है. उसको भी पूरा हक देना है कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे भी पूरे उससे क्वेश्चंस पूछने हैं. सिर्फ वर्क रिलेटेड नहीं पूछने हैं, इंसान को अच्छे से जानना है. और फिर अगर वो एक लगे कि यार इसके साथ मिलके मुझे एक्सपेंशन फील होती है, या इसके साथ मिलके मुझे पीस फील होता है, देन आई वुड लाइक टू वर्क टुगेदर. Okay. परहैप्स ऐसा भी हो सकता है कि जिस पोजीशन के लिए हायर किया था उस पोजीशन के लिए फिट नहीं, कहीं और फिट हो जाए बंदा, यार कि नाइस यार बंदा तो बहुत ही सही है, कि कहीं और करते हैं यार, कुछ और करते हैं, ऐसा भी हो सकता है. Yeah. तो हायरिंग प्रोसीजर में चेंज हुआ है. नंबर 2, आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू फोर्स डेडलाइंस ऑन पीपल अर्लियर. ऐसे ही होना चाहिए, इतने में ही होना चाहिए, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है. तो वो चीज़ भी समझ में आई कि यार ये दीपक तो क्यों करता है. जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई कि यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड यू नो व्हाट डू आई से, ट्रेन देम वेल, आराम से. आई शुड ट्रेन देम वेल, देन गिव देम अथॉरिटी, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू डू थिंग्स. So that sense of need to control जो थी, हाँ, नीड टू कंट्रोल, नहीं नीड टू माइक्रो मैनेज. हाँ, micromanage, which probably comes Yeah. from our own sort of insecurity, lack of परफेक्शन clarity. की मतलब कि परफेक्ट ही होनी चाहिए चीज, ऐसे ही होनी चाहिए चीज. दिस इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स. नो, मतलब दिस इज परहैप्स नॉट द बेस्ट वे, दिस इज जस्ट योर वे टू डू थिंग्स. Yeah. कि ठीक है, मतलब गिव देम ट्रेनिंग, टेल देम व्हाट यू वांट. यस, यू वुड टेल देम कि यार ये अपना मिशन है, ये अपनी वैल्यू सिस्टम है, इसको अडहियर करना अपन ने. दिस इज हाउ वी प्लान टू डू थिंग्स, बट प्लीज प्रेजेंट योर आइडियाज एज वेल. Yeah. देन टेक फुल कंट्रोल, फुल अथॉरिटी, फुल ओनरशिप एंड फुल इंडिपेंडेंस. करो, आराम से करो. ठीक है. ये So चीज भी चेंज which would mean that your workplace is becoming more empowered for Yeah. the people, धीरे धीरे. more respectful, giving them more. धीरे-धीरे. हाँ, yeah, it's a gradual thing, but that's Gradual a thing. that's the Yeah. transition you can say we are Yes. taking on. Yeah. पहले ये भी होता था कि when people used to leave, I used to feel very bad personally, कि यार मैंने ये किया था, मैंने तो वो किया था, या क्या किया था तुमने, है ना. कि if someone is leaving and that is for his or her benefit, very good यार, कितनी अच्छी बात है. और अगर वो किसी इस चीज़ से भी जा रहा है कि नई चीज़ जमी, then it's a very good thing. Yeah. कि अगर नहीं जमा तो बहुत अच्छी बात नहीं है. क्यों एक दूसरे की लाइफ को मिजरेबल बनाना है. जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, डाइवोर्स नहीं लेना, पर मिजरेबल खुद का ही बनाना है और 4 लोगों का और भी बनाना है. ठीक है ना, बढ़िया है, कोई बात नहीं है. लेट्स पार्ट ऑन गुड टर्म्स, फाइन, इट्स वेरी फाइन. Good. वो चीज़ भी. तो ये सब चीज़ें हैं जो लाइक धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंज हो रही हैं. Good. तो लेटिंग लाइफ कम एंड आराम से धीरे धीरे उसके साथ प्यार से डील करना उस लाइफ के साथ, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग थिंग्स, Good. कंट्रोलिंग थिंग्स. Cool. Thank you, Deepak. I'm sure we can, keep talking about your journey for another hour, and there is so much more. Maybe we'll do another recording Yeah. sometime. But thanks for your time, and best of luck for your journey. Thank you, Sameer. Thank you.